Hello, good morning student. Welcome in your science class. Today I am going to discuss about your 7th chapter from your science book, that is safety and first aid. And about this we all of you should be know very well, because this is a very important things for our life. So let's start. An untoward incident might be cause of being hurt is called accident. So, what is the first question from this chapter? What is the accident? What is the accident? So, an untoward incident might be cause of being hurt is called accident. Children usually get hurt on the road, in the school, in the playground, and even at home. So, what is the accident? Accident is unwanted or untoward things that will happen anywhere, anytime with us. एक्सीडेंट एक ऐसा चीज़ है जो कोई कहीं भी किसी भी जगह पे किसी भी वक्त पे हम लोग के साथ हो सकते हैं, और ये एक्सीडेंट की वजह से हम लोग को चोट पहुंचते हैं, हम लोग इंजरी हो जाते हैं. ओके, और वो चिल्ड्रन के साथ, बच्चे के साथ कहीं भी हो सकता है, जैसे कि रोड पे, प्लेग्राउंड पे, और इवन एट होम ऑल्सो. जब वो लोग घर पे है तब भी हो सकते हैं. दे फॉल डाउन, hurt each other, cut their fingers, or break their arms or legs. This all kinds of accident may be happen with us anytime, any places, right? Now, accident can happen at any place or time. Most of these accidents occur because people are carelessness. So what is the main cause of the accident? Accident की वजह क्या है? हम लोग की केयरलेसनेस. हम लोग जो इतनी असावधानी से चलते हैं रास्ते पे, कई पे जगह पे बातें करते करते चलते हैं, अनमोना होकर चलते हैं, मतलब अपने दूसरे एक काम करें तो लेकिन हम लोग की माइंड दूसरी जगह पे, तो दैट इज़ वाई द एक्सीडेंट मे बी हैपन विद अस. इसी के कारण एक्सीडेंट हो सकते हैं. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, all of you underline this. Most of these accidents occur because people are careless. They don't follow the basic rule or in a hurry. Accidents are of different natures. This causes temporary or permanent injuries. To avoid accident, we must follow certain rules called safety rules. So that means when the all personal people are very hurry in a road, any places, that time the accident may be happen with us. Because if we avoid the accident, then we should follow some basic rules, and this rules is known as the safety rules. अगर हम लोग ये चाहते हैं कि एक्सीडेंट कम हो, हम लोग के साथ एक्सीडेंट ना हो, तो फिर हम लोग को कुछ रूल्स, कुछ नियम हम लोग को मान के चलना चाहिए, और इसी रूल्स को कहते हैं सेफ्टी रूल्स. ओके, नाउ वी आर टॉक अबाउट दिस सेफ्टी रूल्स. टू प्रिवेंट एक्सीडेंट वी शुड फॉलो सर्टेन लेड डाउन रूल्स. दिस रूल्स आर कॉल्ड सेफ्टी रूल्स. So what is the safety rules? Yes, children, underline this sentence. To prevent accident, we should follow certain rules. These rules are called safety rules. Next, let us learn some important rules for different places in our daily routines. Yes, you should follow only safety rules on the road. No, it is not. When you are present at home, that time you should be follow some certain rules. When you are going to play in the playground or is going to school, all places we should be follow some certain rules to avoid unwanted accident. Okay, now first we are discuss about the safety rules that we should follow at home. घर पे रहने से हम लोग को कौन से सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए. At home we have to work with blade, knife,
a pair of scissors, electrical appliances, fire, etc. These are very common things that is present in all of our house. ये सारे चीज़ हम लोग के घर पे रहते हैं. ये बहुत ही काम की चीज़ होती है. ब्लेड, नाइफ, scissors, electric appliances. These all things are very much necessary to our home, right? But when we should use this kind of things, we should follow some basic rules about this, and we know about this. Use sharp edged things like blade, a pair of scissors, knives and other tools are very carefully. जब हम लोग ये सारे चीज़ को यूज़ करेंगे तो ये हम लोग को बहुत ही केयरफुली यूज़ करना चाहिए. और ये भी ध्यान रखना कि बच्चे जो है हम लोग की घर की, दे आर नॉट टच दिस काइंड ऑफ थिंग्स. ओके. Do not leave your toys, bags, shoes, etc. on the floor. We may fall over this and get hurt. Many times, the children of our house, they are playing at home. They are with their playing toys, and after playing this, they scatter these toys in our floor. बच्चे लोग क्या करते हैं, खेलने के बाद उनकी जो खेलने की चीज़ें वो सारे फ्लोर पे बिछा के रखते हैं. और इसके वजह से क्या होता है, बाद पे वो भी गिर सकते हैं और घर की जो अदर्स पर्सन से ज़्यादा से ज़्यादा ओल्डेस्ट पर्सन है वो गिर सकते हैं. सो दैट मीन्स ऑलवेज यू शुड बी अरेंज दिस टॉयज़ और एनी अदर थिंग्स आफ्टर यूज़ इज़ अ प्रॉपर वे. कोई भी चीज़ को यूज़ करने के बाद, खेलने के बाद उसको प्रॉपरली रखना बहुत ही ज़रूरी है. डू नॉट प्ले विथ फायर एज प्लेइंग विथ मैच स्टिक, गैस स्टोव, कुकिंग गैस बर्नर और बर्निंग कैंडल माइट लीड टू बर्न इंजरी. ये जो सारी चीज़ें जैसे कि गैस स्टोव, कुकिंग गैस बर्नर, बर्निंग कैंडल माइट लीड टू बी बर्न इंजरी, इससे भी बर्न हो सकते हैं. इसीलिए आफ्टर यूजिंग दिस थिंग वी ऑल शुड बी इट पुट ऑफ. ये सारी चीज़ को हम लोग को निभाना चाहिए. तो गैस स्टोव, जब हम लोग खाना पकाते हैं तो गैस स्टोव की यूज़ करते हैं. आफ्टर मेकिंग द फूड, आफ्टर कुकिंग द फूड, वी शुड बी वेरी केयरफुली स्विच ऑफ द गैस रेगुलेटर. गैस रेगुलेटर को ऑफ करना चाहिए. ओके. नाउ use electrical appliances very carefully. Do not touch these electrical switches or appliances with wet hands. You may get an electrical shock. हम लोगों को कभी भी भीगे हाथ में इलेक्ट्रिकल कोई भी स्विचेस को, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को नहीं टच करना चाहिए, क्योंकि वाटर इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिक. तो वाटर जो होती है वो इलेक्ट्रिक को बहुत जल्दी कैच कर लेते, पकड़ लेते. अगर हम लोग की हाथ जो है वो भीगा रहेगा तो फिर वो हम लोग आसानी से हम लोग इलेक्ट्रिक शॉक खा सकते हैं. सो दैट इज़ वाई ऑलवेज यूज़ द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस विद द ड्राई हैंड्स. हर वक्त हम लोग को सूखा हाथ में, क्लीन हैंड पर इलेक्ट्रिक स्विच को यूज़ करना चाहिए. डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स. Do not taste new thing you don't know about. ऐसे बहुत सारा अननोइंग बॉटल्स रहते हैं घर पे, जैसे कोई काम के लिए कोई लेके आए हो, अगर उसके बारे में हम लोग को नहीं पता होगा कि ये कौन सा चीज़ें क्या है, तो हम लोग को वो टच नहीं करना चाहिए. जैसे कि फ़िनाइल बॉटल, फिर एसिड बॉटल हम लोग जो यूज़ करते हैं फ्लोर क्लीन करने के लिए, तो वो सारी चीज़ अगर जिसको बच्चे को पता नहीं होती तो वो क्या करते हैं, उसको पकड़ लेते हैं. और कभी कभी क्या होता है, वो गिर जाते हैं तो फिर उसकी हाथ पे गिर जाते हैं, मुंह में गिर जा सकते हैं. तो इसके वजह से जो एसिड होती है वो हम लोग की स्किन को जला देते हैं. और जो फिनाइल होती है, अगर वो हम लोग की कोई भी गलती से हम लोग की मुंह के अंदर चले जाते तो वो हम लोग की हेल्थ के लिए नॉट इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ. इट इज़ वेरी कॉजिंग इंजरी टू आवर हेल्थ. ये हम लोग की सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकती है. ओके. डू नॉट try to repair electric points or electric appliances yourself. Call your electrician. Sometime what we are doing, yes, if our electric lines are not working in a proper way, so that's why we are trying to by our own to correct is to repair it. So that should not be done. ये कभी भी नहीं करना चाहिए. अगर तुमको ठीक तरह से इलेक्ट्रिक की कोई भी काम नहीं आता है तो उसको टच नहीं करना चाहिए. फिर हम लोग को क्या करना चाहिए, व्हाट यू डूइंग, यू शुड बी कॉल द इलेक्ट्रिशियन. हम लोग को इलेक्ट्रिशियन को कॉल करना चाहिए. डू नॉट टेक एनी मेडिसिन विदाउट कंसल्टिंग योर पेरेंट्स.
ओके, देयर आर सो मेनी मेडिसिन आर प्रेजेंट इन आवर हाउस। ऐसे बहुत सारा मेडिसिन हम लोग सबके घर पे रहते हैं, लेकिन जो बच्चे लोग हैं उसको कभी भी कोई भी मेडिसिन विदाउट परमिशंस ऑफ योर पेरेंट्स और डॉक्टर या तो पेरेंट्स के परमिशन के बिना उसको नहीं खाना चाहिए। डू नॉट रश ऑन स्टेयर्स, यू मे स्लीप एंड गेट हर्ट। डू नॉट पुल और पुश एनी चिल्ड्रेन, यूज़ हैंडल एट स्टेयरकेस। कभी भी जब हम लोग स्टेयर्स मतलब सीढ़ी से जब हम लोग उतरते चढ़ते तो कभी भी एक दूसरे को धकेलना नहीं चाहिए। और जो सीढ़ी की जो हैंडल होती है साइड पे, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं उसके ऊपर चढ़ के स्लीपर करती है, तो दिस शुड नॉट बी डन। ये कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर थोड़ी सी असावधानी से कोई गिर जाते तो हो सकता है कि उसके हाथ टूट जाए, उसके पैर टूट जाए या तो सर पे चोट आ जाए। तो ये दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी यू शुड नॉट बी डन एट आवर होम। Now, do not fly kites from the roof or terrace because you may fall down and get hurt. कभी भी हम लोग को खुला छत पे जाके या तो टेरेस पे जाके घुड़ी उड़ाना नहीं चाहिए, काइट को उड़ाना चाहिए। इफ़ यू वांट टू फ्लाइंग काइट्स देन यू शुड बी गो द प्लेग्राउंड और एनी ओपन एरियाज, okay, then you flying the kites. This is very interesting game. You should be play it, but you should play on the proper place. Do not flying kites on the terrace or on a roof. Okay, कभी भी हम लोग को छत के ऊपर चढ़ के और टेरेस पे काइट्स को फ्लाई नहीं करना है। You should go to the children park or some safe playground if you want to fly kite and play outdoor games. Outdoor games means जो गेम्स हम लोग बाहर पे जाके खेलते हैं, जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी। This kind of games is known as the outdoor games. Okay. Do not wear clothes made of nylon or terylene at the time of celebration and festival. We use fire lighting crackers, क्योंकि जो नायलन क्लोथ्स होती है, जो टेरिकस क्लोथ्स होती है, उसमें अगर आग लग जाते तो कोई भी कुछ हो जाते तो वो पूरा बर्न हो जाते, वो हम लोग की बॉडी के साथ पूरा चिपक जाते। इसमें क्या होता है, हम लोग की जो बॉडी है वो भी जल सकते, बर्न हो सकते। इसीलिए जब भी हम लोग आग से कुछ कर रहे, अगर हम लोग कुकिंग कर रहे गैस स्टोव में या तो फायर क्रैकर्स कर रहे, हम लोग फेस्टिवल मना रहे, उसमें बाजी फोड़ रहे, तो हम लोग को उस टाइम पे हमेशा कॉटन क्लोथ्स पहनना चाहिए, कभी भी नायलॉन या तो टेरिलिन क्लोथ्स नहीं पहनना चाहिए। डू नॉट क्लाइंब अ वॉल, विंडो और हाई सेल्फ, यू मे स्लीप एंड गेट इंजरी। कभी भी हम लोग को ऊपर में वॉल पे या तो कोई ऊपर ऊंचा सेल्फ में बच्चे लोग को ज़्यादा से ज़्यादा ये चढ़ना उठना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर पैर स्लिप हो जाएगा तो कुछ भी हो जाएगा तो ये इसमें हम लोग को ही चोट पहुँचेगा। Play indoor games in the small rooms as a carom, ludo, chess. If anyone want to play indoor games, then you should be play the carom, ludo, chess, this kind of games, because this is known as the indoor game. इसको हम लोग घर पे बैठ के भी खेल सकते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं indoor game. Okay, so this all rules we should be follow at our homes. Okay, now we are talk about द सेफ्टी रूल्स इन द स्कूल। अब हम लोग को स्कूल पे कौन से रूल्स को फॉलो करना चाहिए ये हम लोग जानेंगे। रनिंग अप एंड डाउन ऑन स्टेयरकेस माइट लीड टू इंजरी, डू नॉट पुश और पुल एनी बॉडी ऑन स्टेयर्स। जैसे ही घर पे भी हम लोग पढ़े थे कि स्कूल में क्या होता है, बच्चे छुट्टी के बाद या तो टिफ़िन के टाइम पे क्या होती है, स्टेयर्स से जब लोग उतर रहते, सीढ़ी से जब लोग ना उठते चढ़ते तो बहुत ही दौड़ के उठना चढ़ना करते और एक दूसरे को धक्का धक्की करते, इसमें उन लोग को मज़ा मिलता है। लेकिन नो, दिस इज़ नॉट अ फन, दिस मे बी कॉज ऑफ द इंजरी ऑफ द हार्म। सो दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी शुड नॉट बी डन एनी टाइम। ओके, कभी भी सीढ़ी में चढ़ने के टाइम पे उतरने के टाइम पे ऐसे धक्का धक्की नहीं करना चाहिए। ओके, नाउ डू नॉट जंप ऑन द डेस्क और ऑन द बेंचेस इन द क्लासरूम, डू नॉट पुश एनी बॉडी इन द क्लासरूम। क्लासरूम में जो डेस्क है, जो बेंच है, वो किसके लिए है, वो हम लोग के पढ़ने के लिए, हम लोग के बैठने के लिए। वी सिट ऑन द benches, we keep our books or bags on the desk, so that is why we should not jump on the desk or the benches. Okay, and do not push anybody in the classroom.
because in our school, in the classroom, this is a very important place where we are learn so many things. Okay, so that is why you should be maintain discipline in our school areas, in our classroom, and we should be very kind hearted, we are very kindly natured with our other friends. Now do not throw chalk pieces, duster and other things at the others. हम लोग को कभी भी चॉक पीसेस को, डस्टर को दूसरे के ऊपर फेंकना नहीं चाहिए. ओके. नाउ use sharpener for pencils. Do not use blades to sharpen your pencil. Always you should use sharpener for sharpen your pencil. Do not use blades or knife. Do not play in the classroom. Do not keep any sharp edges things such as knife, a pair of scissors, blade, needle, etc. in your bag. If necessary, keep it in a plastic box. Sometimes for a craft work, for a drawing, we need this kind of things, knife, scissors, blade. But if you bring it with you, then you should be keep it in a plastic bag, not keep it in a open bag. ओके अगर ये ज़रूरी होता है स्कूल पे लाने के लिए बोला जाए तो हमेशा हम लोग को ये अलग कैरी बैग पे लेके आना चाहिए, ऐसे ओपनली बैग में नहीं लेके आना चाहिए. ओके. नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द सेफ्टी रूल्स ऑन द प्ले ग्राउंड. अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्ले ग्राउंड में कौन से सेफ्टी रूल्स हम लोग को फॉलो करना चाहिए. वेट फॉर योर टर्न वाइल प्लेइंग ऑन द स्लाइड और स्विंग. अगर हम लोग जब स्लाइड पे और स्विंग पे खेलने के लिए जाते हैं एंड इफ़ वी आर नोटिस दैट एनी अदर चिल्ड्रन आर स्लाइडिंग एंड स्विंग इन ऑन दिस, सो दैट टाइम वी शुड बी वेट एंड योर टर्न. जब तक हम लोग की टर्न आती है उसको कंप्लीट ना तब तक हम लोग को वेट करना चाहिए. पुशिंग एनी बॉडी ऑन स्लाइड कैन लीड टू इंजरी. कभी हम लोग को दूसरे को स्लाइड के ऊपर से धक्का नहीं देना चाहिए. ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम्स. When we are playing any game, cricket, football, then you should be follow some rules about this game. Do not hit others with a bat, ball or anything that causes injury. कोई भी बैट बॉल और अदर्स थिंग से प्लेइंग इक्विपमेंट से दूसरे को हार्ट नहीं करना चाहिए. Do not play near a thorny edges or barbed wires. बर्बेड वायर्स मतलब ऐसे बहुत जगह पे रोड पे प्लेग्राउंड पे हम लोग देखते हैं कि कोई तार, कोई वायर्स रोड की वो गिरा हुआ रहते हैं, तो कभी भी उसके आसपास में हम लोग को जाना नहीं चाहिए और हम लोग को वो टच भी नहीं करना चाहिए. डू नॉट क्वेरल एंड अवॉइड बैड लैंग्वेज वाइल प्लेइंग. कभी किसी के साथ झगड़ना नहीं चाहिए, बैड लैंग्वेज में बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है जो फ्रेंडशिप है वो ख़राब होती है और कोई हम लोग के साथ खेलना नहीं चाहेंगे. बी कोऑपरेटिव विथ अदर्स. हमेशा सारे बच्चे के साथ दूसरे के साथ मिलजुल के खेलना चाहिए. शेयर योर टॉयज़ और स्पोर्ट्स मटेरियल विथ योर फ्रेंड्स. ओके. व्हेन वी आर गोइंग टू प्ले इन द प्ले ग्राउंड्स, दैट टाइम देयर आर सो मेनी चिल्ड्रंस आर प्ले टुगेदर. सो इन दैट केस वी शुड ऑलवेज शेयर आवर थिंग्स विथ अदर्स. ओके. and enjoy our games. So this kind of safety rules should be follow at the different places. When we are stay at home, then there are some safety rules we should be follow. When we are in our school, then there we should follow some safety rules, and when you go to the playground, there also we should follow some safety rules. Okay. Now in today's video we are complete up to here. I hope all of you enjoyed this video and understand this chapter very proper way. In the next class, in the next video, I will discuss in the next portions of this chapter. And thank you students. Have a good day. Take care of yourself. Bye bye.